Assalamu alaikum. So, KS, can you hear me? Am I audible? So, you can type your message if I'm audible. And then you can ask other your friends as well to join so that we can start this live session to answer the questions. So, I will recommend that you guys start writing questions. First, we can start from survey method. So, right from surveys, first we talk about what are the surveys. I talk about the surveys, and then about the surveys categories. You can write your questions, and I can answer those questions. Can you please start with content analysis? I think it's better to start with the surveys because content analysis is a short content. So later on we can start with the content analysis. So when we talk about surveys, survey research or survey method, primarily speaking, is a method in which we collect information or collect data from or about people or respondent about their about their opinions. So their opinion can be or the public opinion or their, because why I call it public opinion, because the opinion of the public, so that's why we call it public opinion, and actually it's their opinion, people opinion. So when we say the public opinion, it can be further categorized into three kinds. I mean, if we ask about the voting behavior, I mean, this is public opinion about the political issues. I mean, the voting behavior, the voting patterns, the voting preferences. When we are talking about this, we call this kind of public opinion that attitudes about voting or voting behavior or attitudes about voting or something like this. Then the second is the consumer research, where we talk or we ask from the respondents or consumers about the preferences, about the product likability, dislikability, favorability, or disfavorability about different products. So the consumer research, what is the second type of public opinion, talks about the product. And then there is what we call evaluation research, where we, in this kind of research, we ask people's opinion about different programs, about different government policies, about the performance of different government departments, and we evaluate the performance of the government or the institutions or different kind of programs or ideas, that how successfully they are working at. We can evaluate performance about government institutions and about other things in two ways. One is a formative, that is a step-by-step evaluation. I mean, we can ask continuously from people their opinion about any idea, about any project, that how it is going. And then it's a symmetric evaluation, that we ask people about their opinion or about their evaluation about any idea, any project or any institution or anything. At the end, when the project is completed, like annual system is the best example to rate the quality of a teaching in a course, or semester system is the best example of formative evaluation, where we evaluate the course of the teaching of the content of the learning objectives at mid and then sessional and then the final term. So when we talk about the surveys primarily speaking, talk about or ask people about these things. The next question, which is very important in the survey research, is that what we measure or what we ask in surveys. This is very, very important question. Most of the people ask that what we ask in surveys, primarily speaking, when we talk about the surveys or what we ask in surveys, there are certain categories, though they can overlap. Or category, when I say categories, the categories of the questions. Like when we ask or what we ask in surveys, primarily speaking, the first thing which we ask in surveys are attitudes. We ask the questions about attitudes. I mean, what attitude is? Actually, attitude is liking or disliking, or favorability or disfavorability. That is what we say. The first thing which we ask in surveys are the attitudes. Then the second thing what we can ask in surveys is behavior. So in behavior, primarily speaking,
we ask what actually people do. In attitude, we ask کہ لوگ کیا پسند کرتے ہیں، کیا ناپسند کرتے ہیں، کس چیز کو فیور کرتے ہیں، کس چیز کو فیور نہیں کرتے. جبکہ بیہیویئر کے اندر جو ہمارا مقصد ہوتا ہے، جو ہم سوال بناتے ہیں، وہ پریمرلی اسپیکنگ وہ پوچھتے ہیں کہ لوگ پریکٹیکلی کر کیا رہے ہیں، کیا کرتے ہیں، کیا کر رہے ہیں. یعنی آپ کسی سے پوچھتے ہیں کہ آپ دن میں کتنی بار اپنے جو ہے دانت جو ہے وہ برش کرتے ہیں یا صاف کرتے ہیں. تو یہ ایک دیکھیں یہ پریکٹس ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں. آپ کسی سے پوچھتے ہیں کہ آپ کتنی بار ہفتے میں جم جاتے ہیں، ہفتے میں کتنے گھنٹے آپ پڑھتے ہیں، آپ کب آپ جو ہے کھانا کھانے ہفتے میں کتنی بار کھانا کھانے یا باہر کسی ریسٹورینٹ پہ جاتے ہیں. سو یہ جو سوال ہے پریکٹیکلی جو یہ پوچھتے ہیں، یہ جو اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ آپ کیا کرتے ہیں اور یہ لوگ کیا کرتے ہیں، انہیں ہم بیہیویئر کوسچن کہتے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہوتا ہے دا نیکسٹ کیٹیگری از اباؤٹ دا نالج کوسچنس. اب جو نالج والے کوسچنز ہوتے ہیں ان کے اندر ہم کسی بھی شخص کا جو ہے وہ نالج ٹیسٹ کرتے ہیں، اس کے نالج کو جانچتے ہیں کہ لوگوں کو کتنا نالج ہے. مثلا آپ کسی سے پوچھ لیں کہ پچھلے الیکشن میں یعنی 2018 کے الیکشن میں کون سی پارٹی جیتی تھی، یا کتنے رجسٹرڈ ووٹر تھے پاکستان میں، یا پنجاب کا چیف منسٹر کون تھا، سینٹ کا چیئرمین کون تھا، چیف جسٹس اس وقت کون تھا، اینڈ سو آن. سو آل دوز کوسچنز وچ آر اباؤٹ دا نالج، جو نالج پوچھتے ہیں لوگوں سے، ان کو ہم نالج کوسچنز کہتے ہیں. یعنی ایسے سوال جو نالج کو ٹیسٹ کرتے ہیں. پھر جو کچھ سوال ہوتے ہیں وہ بلیف کے بارے میں ہوتے ہیں، جس میں ہم لوگوں کا بلیف جانتے ہیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کتاب پڑھنا اچھی عادت ہے. تو یہ جو ہے یہ بلیف ہے کہ یعنی میرے خیال میں جو لوگ کتابیں پڑھتے ہیں ان کے پاس زیادہ آئیڈیاز ہوتے ہیں، یہ بھی بلیف ہے. تو بلیف کوسچن جو ہے وہ کسی شخص کی جو ہے وہ اس کا نظریہ کیا ہے کسی بارے میں. یعنی آپ یہ کہیں کہ جو لوگ لیکچرز لیتے ہیں اور اس کے ساتھ کتاب بھی پڑھتے ہیں وہ اچھا پرفارم کرتے ہیں. تو یہ آپ کا بنیادی طور پہ بلیف ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے کسی چیز کے بارے میں. اسی طرح پھر پبلک اوپینین ہے، یعنی اوپینین کوسچنز ہے. یعنی اگر آپ سے پوچھا جائے کہ آپ کی رائے میں پاکستان کا سب سے بڑا ایشو کون سا ہے، تو کچھ کہیں گے جو ہے وہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، کچھ کہیں گے کہ اکانومی ہے، کچھ کہیں گے فارن ریلیشنز ہے، کچھ کہیں گے پاورٹی ہے، کچھ کہیں گے پاور شارٹیج ہے. تو آپ جو بھی جس بھی رائے کا اظہار کریں گے ایسے کوسچنس کو ہم اوپینین کوسچنس کہتے ہیں. تو اوپینین کوسچنس primarily speaking talk about or seek or try to understand the opinion of the people. اسی طرح پھر ایکسپیکٹیشنز کوسچنز آپ پوچھ سکتے ہیں سروے کے اندر کہ آپ کسی سے پوچھیں کہ آج سے 5 سال بعد آپ کہاں ہوں گے، آپ کیا سمجھتے ہیں، یا آپ کیا اگلے سال ایک نیا گھر خرید لیں گے، آپ ایک نئی گاڑی خرید لیں گے، یا آپ کتنی کتابیں اگلے سال تک پڑھ لیں گے، یا آپ کب تک یہ ڈگری مکمل کر لیں گے. سو آل دیز کائنڈ آف کوسچنس آر ایکسپیکٹیشن کوسچن، جس کے اندر آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اگلا بندہ جو ہے وہ کیا ایکسپیکٹ کرتا ہے اپنے بارے میں یا کسی چیز کے بارے میں. اسی طرح پھر جو ہے کلاسیفیکیشنز ہیں، یعنی سیلف کلاسیفیکیشن ہے کہ لوگ اپنے آپ کو کہاں کیٹیگرائز کرتے ہیں. یعنی وہ زیادہ ریلیجیس ہیں، نان ریلیجیس ہیں، لبرل ہیں، ڈیموکریٹ ہیں، نان ڈیموکریٹ ہیں، وہ اتھارٹیرین رول کو سپورٹ کرتے ہیں یا وہ ڈیموکریٹک رجیم کو سپورٹ کرتے ہیں. تو دیز کائنڈ آف سیلف کلاسیفیکیشن کوسچن، جس کے اندر لوگ اپنے آپ کو کلاسیفائی کرتے ہیں کہ وہ کہاں فال کرتے ہیں، کس کیٹیگری کے اندر وہ آتے ہیں. I mean, these are the questions which we ask in surveys. اگر ان کے بارے میں if you want to type any questions, so you can type and I can answer those questions. Otherwise, then we move forward. If any question, I am ready to answer. Otherwise, if there is no question, then we can move forward. ہم پھر اس ڈسکشن کو کنٹینیو کرتے ہیں. And if there is any question, so then first I can answer those questions and then we can move forward. So if any question, please type that question or those questions in the comments box. And otherwise, we continue talking about the
about the other methods or about the other topics. If there is a question, continue the discussion. Okay. So I think it's better. I mean, Bulerina, if it's better if you can, you guys can ask specific questions and I can answer those questions. I think that would be more logical rather than I keep talking. Maybe for some of people that is useful, for maybe some of the people that is not useful. So if you have a particular questions, then you can ask those questions. But I will of course continue this discussion. And then there are the type of service. I mean, like a mail service, and then like face-to-face service, and also like telephonic service, and also like web service. And these are the four kinds which are primarily which researcher use to conduct सर्विस. जब भी हम सर्विस करते हैं तो इनमें से हम कोई ना कोई एक काइंड जो है वो यूज करते हैं. सो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, शाह ने क्वेश्चन लिखा है कि क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड क्वेश्चंस के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या. मैं इस पे रिफ्लेक्ट करता हूँ, देन वी मूव फॉरवर्ड. देखिए, पहली बात तो ये है कि क्लोज एंडेड क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस को कहते हैं जिसमें से रिस्पोंडेंट जो है वो फोर्स्ड ऑप्शन को चूज करते हैं. फोर्स ऑप्शन क्या है? यानी आपको अगर बताया जाए कि लिखा जाए कि ये बैंक बहुत रिलायबल है और नीचे मैं ऑप्शन दे दूं स्ट्रांगली एग्री, एग्री, डोंट नो, डिसएग्री एंड स्ट्रांगली डिसएग्री. ये फोर्स्ड चॉइस है. इसमें से जो भी आप ऑप्शन आप टिक करेंगे तो इसका मतलब है कि आपने जो आपको ऑप्शन अवेलेबल थे, दिए गए थे, उसमें से कोई एक ऑप्शन आपने चूज किया है. तो इस किस्म के क्वेश्चंस को हम फोर्स्ड चॉइस या क्लोज एंडेड क्वेश्चंस कहते हैं. ओपन एंडेड क्वेश्चन जो होते हैं उनके अंदर आप लिखते हैं कि ये बैंक रिलायबल है और नीचे फिर लोग लिखते हैं कि वो रिलायबल है. यानी हम कहते हैं कि आपकी इस बैंक के बारे में क्या राय है या इस बैंक के बारे में आप क्या समझते हैं. देन पीपल राइट कि वो रिलायबल है, वो अनरिलायबल है, वो कंज्यूमर फ्रेंडली है, वो कस्टमर फ्रेंडली है या नहीं है. तो दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन जो है ये हम ओपन एंडेड क्वेश्चंस कहते हैं. अब इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं? क्लोज एंडेड क्वेश्चन का एडवांटेज ये होता है कि डाटा जो है वो क्वांटिटेटिव फॉर्म में आता है, उसका एनालिसिस करना बहुत आसान होता है. जबकि ओपन एंडेड क्वेश्चन जो है उसका डाटा जो है उसका जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि उसका जो डाटा है वो टेक्स्ट की सूरत में आता है. टेक्स्ट को फिर कोड करते हैं, कोड से फिर उसको नंबर में कन्वर्ट करते हैं, तो ये बड़ा एक लंबा प्रोसेस होता है. तो यानी क्लोज एंडेड क्वेश्चन का एडवांटेज ये है कि डाटा न्यूमेरिकल आता है, जो है नंबर्स की सूरत में आता है. जबकि जो ओपन एंडेड क्वेश्चन है उसका डिसएडवांटेज ये है कि जो डाटा है वो टेक्स्ट में आता है, बहुत ज़्यादा टेक्स्ट होता है, उसको अंडरस्टैंड करना पड़ता है, उसके थीम बनाने पड़ते हैं. ये इसका डिसएडवांटेज. इसका एडवांटेज क्या है कि लोग अपनी राय का, यानी ओपन एंडेड क्वेश्चन का एडवांटेज क्या है कि लोग अपनी राय का इजहार कर सकते हैं जो वो करना चाहते हैं, यानी उनको फोर्स नहीं किया जाता. अगर वो जो ऑप्शन दिए हुए हैं उससे कोई और ऑप्शन मुनासिब समझते हैं तो उसका इजहार कर सकते हैं. इसी तरह क्लोज एंडेड जो क्वेश्चन है उसका डिसएडवांटेज ये होता है कि चूंकि ऑप्शन क्लोज्ड होते हैं तो अगर लोग उसके अलावा किसी ऑप्शन को टिक करना चाहते हैं, किसी ऑप्शन की तरफ जाना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल में वो नहीं जा सकते. उसकी वजह ये होती है कि वहाँ पे ऑप्शन दिए नहीं होते. तो अगर जो ऑप्शन प्रोवाइड हैं, जो ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से कोई रिस्पोंडेंट एग्री नहीं करता तो वो कोई नया ऑप्शन नहीं लिख सकता क्योंकि नया ऑप्शन वहाँ पे दिया नहीं होता. तो ये उसका एक डिसएडवांटेज है. सो ये जो है इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं. क्लोज-एंडेड क्वेश्चन है, लिकर्ट स्केल क्वेश्चंस, दे कैन बी एनी, यानी यस एंड नो जो है ये भी क्लोज-एंडेड क्वेश्चन है. जो मैंने स्ट्रांगली एग्री से स्ट्रांगली डिसएग्री किया है वो भी क्लोज-एंडेड क्वेश्चन है. लेकिन अगर आप किसी से पूछें और नीचे खाली जगह छोड़ दें तो वो ओपन-एंडेड क्वेश्चन है. सो इट डिपेंड्स. बोथ ओपन-एंडेड क्वेश्चंस एंड क्लोज-एंडेड क्वेश्चंस have their advantages and have their disadvantages. So sometimes इनका जो हम हल निकालते हैं वो हम फिर पार्शली क्लोज एंडेड क्वेश्चंस बनाते हैं, यानी उसके अंदर हम एक ऑप्शन जो है वो क्लोज एंडेड को रखते हैं और एक ऑप्शन हम ऐड करते हैं जिसको हम अदर कहते हैं. सो जो अदर होता है बुनियादी तौर पे, अदर जो है वो फिर अगर कोई रिस्पोंडेंट फोर्स चॉइस में से नहीं जाना चाहता किसी चीज़ के साथ तो अदर उसे बताता है कि वो किस चॉइस के साथ जा सकता है. सो व्हेन वी ऐड द ऑप्शन अदर in close-ended questions,
देन उसके अंदर ये ऑप्शन आ जाती है कि अगर रिस्पोंडेंट किसी ऑप्शन से एग्री नहीं करता तो वो उस अदर के साथ यानी टिक करके और वहाँ वो लिख सकता है कि किस पॉइंट के साथ वो एग्री करता है। तो अदर जो है वो हमें प्रोवाइड करता है कि ये ऑप्शन देता है कि हम जो क्लोज एंडेड क्वेश्चंस हैं उनको पार्शली क्लोज एंडेड क्वेश्चंस के तौर पे ट्रीट कर सकें। जी, एनी अदर क्वेश्चन? इसके बारे में कोई और सर्वे के बारे में आपका क्वेश्चन है तो आई कैन आंसर। Any question? There is no question. If there is a question, you can type and I can answer that question. Otherwise, I can move to content analysis. If you don't have any question, then Faisal, having the opportunity to attend the live lecture on your research by you is a tremendous blessing. So thank you so much, Faisal answer, I think. So thank you so much. I'm trying. I've also made two lectures on survey method today. One of them was that what we ask in surveys. Second was how we ask attitude questions in survey. And after some time, I will upload another lecture how we ask behavior questions in survey. So maybe in this month I will complete the survey method. Maybe I will make like 20 lectures on survey method. So after watching those lectures, Faizan sir and the other people like Faizan sir, you will be able to understand सर्वे मेथड इन डिटेल। इंशाल्लाह आपको फिर सर्वे मेथड जो है उसकी समझ आ जाएगी कि उसमें जब हमें एटीट्यूड के बारे में सवाल पूछते हैं तो उनकी लैंग्वेज कैसी होती है, एटीट्यूड के सवाल किस तरह बिहेवियर से फ़र्क होते हैं, किस तरह जो है वो ओपिनियन के सवाल से फ़र्क होते हैं, किस तरह एटीट्यूड और बिहेवियर डिफरेंट होता है, किस तरह बिहेवियर और बिलीफ डिफरेंट होता है, किस तरह बिलीफ और ओपिनियन डिफरेंट होती है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है एज ए रिसर्चर जानना कि जो हम सवाल पूछते हैं उसका मतलब क्या है, और अगर मैं एटीट्यूड पूछ रहा हूँ तो क्या जो मेरा सवाल है उसकी लैंग्वेज भी एटीट्यूड ही पूछ रही है। यही आजकल के जो रिसर्चर है, अर्ली रिसर्चर्स भी और बहुत से जो रिफाइंड रिसर्चर्स हैं वो बाज़ इन चीज़ों के अंदर कंफ्यूज करते हैं। आई थिंक दे नीड क्लैरिटी अबाउट दिस सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड कि किस तरह से वो चीज़ों को ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं, और अपनी ज़ाहिर जब उनकी अंडरस्टैंडिंग इनहेंस होगी तो मेरे ख्याल में वो बेहतर तरीके से जो है वो सवाल पूछ सकते हैं, और जो डाटा उनके पास आता है वो उसी तरह का डाटा आएगा जिस तरह का डाटा वो चाहते हैं। अगर एटीट्यूड्स के बारे में चाहते हैं तो एटीट्यूड्स के बारे में आएगा, बिहेवियर के बारे में चाहते हैं तो बिहेवियर आएगा, बिलीफ के बारे में चाहते हैं तो बिलीफ आएगा, ओपिनियन के बारे में चाहते हैं तो ओपिनियन आएगी, नॉलेज के बारे में चाहते हैं नॉलेज आएगा, वैल्यूज के बारे में चाहते हैं तो वैल्यूज लोग बताएंगे, ट्रेड्स, सेल्फ क्लासिफिकेशन, यू कैन नेम। तो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, जवाब इम्पोर्टेंट नहीं है, सवाल इम्पोर्टेंट है। जब आप सवाल ठीक पूछेंगे तो जवाब ठीक आएगा। तो ज़्यादातर हमें जो फोकस करना है वो सवाल सही पूछने पे फोकस करना है। ठीक हो गया? ओके जी। Then Gulerina is talking about content analysis. So definitely after this I'm going on to content analysis. So Faiza answer, thank you so much for your comment. So now I move to the content analysis. देखिए सर्वे मेथड यानी सर्वे मेथड और कंटेंट एनालिसिस में बुनियादी तौर पे जो फ़र्क है, सर्वे लोगों की एग्जिस्टिंग ओपिनियन या लोग क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, क्या एटीट्यूड रखते हैं, क्या उनका नॉलेज है, उसके बारे में पूछते हैं। जबकि जो कंटेंट एनालिसिस मेथड है वो ऑलरेडी जो रिकॉर्डेड इंफॉर्मेशन होती है, यानी कंटेंट एनालिसिस यानी कंटेंट टेक्स्ट उसको कहते हैं, और एनालिसिस उसका तज्जिया। कंटेंट एनालिसिस बुनियादी तौर पे ऐसी इंफॉर्मेशन का तज्जिया होता है जो ऑलरेडी रिकॉर्डेड होती है, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि कंटेंट एनालिसिस में हम आने वाली इंफॉर्मेशन के बारे में नहीं पूछ सकते, जबकि सर्वेज में आप लोगों की आने वाले वाकयात के बारे में भी राय पूछ सकते हैं, उनके एटीट्यूड पूछ सकते हैं, उनका बिहेवियर पूछ सकते हैं, उनका नॉलेज पूछ सकते हैं कि वो क्या उनकी एक्सपेक्टेशंस पूछ सकते हैं। लेकिन जो कंटेंट एनालिसिस है बुनियादी तौर पे वो ऐसी इंफॉर्मेशन का किया जाता है जो पहले रिकॉर्ड हो चुकी होती है। सो रिकॉर्डेड इंफॉर्मेशन को हम टेक्स्ट कहते हैं। यानी जब मैं टेक्स्ट कहता हूँ तो इसका मतलब ये है कि चाहे ऑडियो है, चाहे प्रिंटिंग टेक्स्ट है मेरे पास, यानी कोई बुक है, कोई ऑडियो है, कोई वीडियो है, कोई मूवी है, हम इन सारी चीज़ों को टेक्स्ट कह सकते हैं। सो फॉर टू सिंप्लीफाई दिस प्रोसेस,
सो जब हम चीज़ों को सिंप्लीफाई करना चाहें तो इन सब चीज़ों को हम टेक्स्ट कह सकते हैं। टेक्स्ट का जब हम एनालिसिस करते हैं तो हम करते क्या हैं? उसके अंदर हम थीम्स तलाश करते हैं, पैटर्न्स तलाश करते हैं, कैरेक्टर्स देखते हैं, थीम्स देखते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ वर्ड्स देखते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरेक्टर्स देखते हैं। बुनियादी तौर पे हम देखते हैं कि जिस कंटेंट का हम एनालिसिस करते हैं, जिस इंफॉर्मेशन का हम एनालिसिस करते हैं, उसके अंदर पैटर्न्स क्या है, किसी कैरेक्टर की कितनी फ्रीक्वेंसी है, वो कोई कैरेक्टर कितनी बार आया है, यानी हीरो कितनी बार आया है, विलन कितनी बार आया है। अगर आप इन्वायरमेंट के बारे में बात कर रहे हैं तो माहौल फ्रेंडली थीम्स कितनी बार आए हैं, और माहौल के खिलाफ वाले जो है माहौल डिग्रेडेशन के थीम्स कितनी बार आए हैं। सो ये जब आप बात करते हैं तो बुनियादी तौर पे हम कंटेंट एनालिसिस के अंदर वी फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वर्ड्स, थीम्स, पैटर्न्स, डोमिनेंट थीम्स और लेस डोमिनेटली कवर्ड थीम्स। कंटेंट एनालिसिस बुनियादी तौर पे इन चीज़ों पे बात करता है। सो मैं अगर इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करूं तो हम कह सकते हैं कि सिस्टमेटिकल ऑब्जेक्टिव प्रोसीजर और मेथड टू इन्वेस्टिगेट द रिकॉर्डेड इंफॉर्मेशन। ठीक है, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन है, जो रिकॉर्डेड इंफॉर्मेशन है, उसका जो तज्जिया होता है, उसका जो एनालिसिस होता है, उसे हम कंटेंट एनालिसिस कहते हैं। अब जो कंटेंट एनालिसिस है बुनियादी तौर पे इसके फ़ायदा क्या है, इसके यूजेस क्या है, इसको हम क्यों यूज़ करते हैं, ये हम करते क्यों हैं। पहला सबसे जो है वो हम कम्युनिकेशन जो टेक्स्ट होता है उसको डिस्क्राइब करना चाहते हैं। जब भी फर्ज करें आप किसी कॉलम का, किसी फीचर का, किसी एडिटोरियल का, किसी बुक चैप्टर का, किसी मूवी का, किसी सॉन्ग का, ठीक है, किसी प्रोमो का, किसी एड का एनालिसिस करते हैं तो बुनियादी तौर पे हम क्या करते हैं, हमारा मकसद क्या होता है। हम बुनियादी तौर पे ये चीज़ बयान करते हैं कि उसके अंदर क्या चीज़ जो है वो नरेट की गई है, क्या चीज़ बयान की गई है। तो बुनियादी तौर पे हम कम्युनिकेशन टेक्स्ट को एक्सक्यूज मी, हम कम्युनिकेशन टेक्स्ट को एक्सप्लेन करना चाहते हैं, बयान करना चाहते हैं। तो बुनियादी तौर पे जब हम पहला जो हमारा काम होता है कंटेंट एनालिसिस का, जब हम कंटेंट एनालिसिस करते हैं तो पहला काम हमारा ये होता है कि हम कंटेंट एनालिसिस जो है उसके ज़रिए जो बॉडी ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, जो बॉडी ऑफ टेक्स्ट होती है, उसको एक्सप्लेन करते हैं। उसके अंदर जो पैटर्न्स हैं, उसके अंदर जो वर्ड्स हैं, उसके अंदर जो थीम्स हैं, उसके अंदर जो फ्रीक्वेंसी ऑफ वर्ड्स है, हम उसको डिस्क्राइब करते हैं कि वो कितनी बार कोई वर्ड कितनी बार आया है, कोई करेक्टर यानी ओल्ड करेक्टर कितनी बार आया है, यंग कितनी बार आया है, मेल कितनी बार आया है, फीमेल कितनी बार आया है, चाइल्ड करेक्टर कितनी बार आया है, और अगर वो मूवी है तो हीरो को कैसे दिखाया गया, विलन को कैसे दिखाया गया। अगर वो किताब है तो किताब के अंदर बुनियादी तौर पे जो है आप ये देखते हैं कि उसके अंदर कौन से अल्फाज कितनी बार आए हैं, यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ वर्ड्स क्या है। ठीक है, तो ये इसका पहला फ़ायदा है। दूसरा फ़ायदा क्या होता है कि आप देखते हैं कि जब आप कंटेंट को देखते हैं तो उसको आप रियल लाइफ के साथ देखते हैं। यानी फ़र्ज़ करें आप अखबार पढ़ते हैं या मूवी देखते हैं या कुछ सीज़न देखते हैं तो आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राइम नज़र आता है। तो लोग ये अज्यूम करना शुरू कर देते हैं, यानी बाय वाचिंग मूवीज़, बाय वाचिंग सीज़न्स, बाय रीडिंग बुक्स और बाय रीडिंग द नॉवेल्स और फिक्शन और एक्शन नॉवेल्स और हिस्टोरिकल नॉवेल्स, जब वो देखते हैं तो वहाँ पे जब बहुत ज़्यादा वायलेंस देखते हैं या जिस तरह की भी चीज़ वो पढ़ते हैं तो अल्टीमेटली वो चीज़ जो है लोग रियल लाइफ में भी महसूस करना शुरू कर देते हैं। अगरचे उस चीज़ की जो फ्रीक्वेंसी है रियल लाइफ में इतनी नहीं होती, लेकिन लोग चूँकि उसको मीडिया में देख रहे होते हैं, और हमारा आजकल के दौर में हमारा जो इन्फॉर्मेशन का सबसे बड़ा सोर्स है वो मीडिया है। चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो ट्रेडिशनल मीडिया हो, चाहे वो जो है द मोस्ट ओल्ड मीडिया मूवी हो, या सोप ओपरास, ड्रामास हो, व्हाटएवर, जो भी हम कंज्यूम करते हैं, जो भी हम वॉच करते हैं, बुनियादी तौर पे जो हम वहाँ से सीखते हैं वो हम ये समझते हैं कि रियल लाइफ में भी वैसा ही होता है। हालांकि रियल लाइफ में बाज़ औक़ात जो है वैसा हो नहीं रहा होता, और ये भी इट कुड बी वाइस वर्सा कि जो रियल लाइफ में हो होता है बाज़ औक़ात ये ज़रूरी नहीं कि वो मीडिया के अंदर रिफ्लेक्ट भी हो रहा हो। और इसी के बारे में एक थ्योरी है बड़ी खूबसूरत जिसे हम कल्टीवेशन एनालिसिस कहते हैं। तो यानी जो लोग हैवी डोज मीडिया की लेते हैं, जैसे कोई मेडिसिन खाए और हैवी डोज खाए तो उसका ज़्यादा असर होता है, इसी तरह जो लोग मीडिया की हैवी डोज यूज़ करते हैं, यानी
3 سے زیادہ گھنٹے روزانہ میڈیا دیکھتے ہیں، اور اب آپ خود دیکھ لیں کہ ہم سارے ہی میرے خیال میں آج کے دور میں ہیوی ڈوز آف میڈیا جو ہے وہ یوز کر رہے ہیں. یعنی میرے خیال میں ہم میں سے بیشتر لوگوں کا جو اسکرین ٹائم ہے وہ 3 گھنٹے سے ہر روز زیادہ ہوتا ہوگا، اور اگر وہ زیادہ ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے ہم سارے ہیوی یوزرز ہیں میڈیا کے. اور یہ کلٹیویشن تھیوری یہ کہتی ہے کہ جب لوگ زیادہ میڈیا کنزیوم کرتے ہیں، زیادہ میڈیا یوز کرتے ہیں، تو لوگوں کی جو ریئلٹی ہوتی ہے وہ ویسی ہی ان کو نظر آتی ہے جیسی میڈیا دکھاتا ہے. حالانکہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ریئل لائف کے اندر بھی ریئلٹی ویسی ہو یا چیزیں ویسی ہوں. تو یہ ایک پرسپیکٹیو ہے کلٹیویشن انالیسس جو بتاتا ہے کہ میڈیا جس طرح کی ریئلٹیز کریٹ کرتا ہے الٹیمیٹلی وہی ہماری ریئلٹیز بن جاتی ہیں. اس پہ میں اکثر کہتا ہوں کہ ہم جو کھاتے ہیں، جو پیتے ہیں، جو پسند کرتے ہیں، جو ناپسند کرتے ہیں، یہ بنیادی طور پہ اس چیز پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم کیا پڑھتے ہیں، کیا سنتے ہیں اور کیا دیکھتے ہیں. ہم جس طرح کے ناولس پڑھتے ہیں، جس طرح کی کتابیں پڑھتے ہیں، ہم جس طرح کا میوزک سنتے ہیں، ہم جس طرح کے ڈرامز دیکھتے ہیں، موویز دیکھتے ہیں اور سیزنز دیکھتے ہیں، وہ بنیادی طور پہ ہمارے ہمارے ٹیسٹ کو، ہمارے ایٹیچیوڈس کو، ہمارے بیہیویئر کو، ہمارے نالج کو، ہماری ایکسپیکٹیشنز کو وہ شیپ کرتے ہیں. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے آج کے دور میں، خاص طور پہ جو ہمارا فیلڈ ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ ہمارا جو کانٹینٹ ہم یوز کرتے ہیں بڑی حد تک ہمیں شیپ کرتا ہے، اور ہمارے کریکٹر کو جو ہے وہ شیپ کرتا ہے، ہماری انڈرسٹینڈنگ کو شیپ کرتا ہے، ہماری لائکس کو شیپ کرتا ہے، ہماری ڈس لائکس کو شیپ کرتا ہے. یہ اس کا دوسرا جو ہے وہ ایڈوانٹیج ہے. ٹھیک ہے. اب گلرینا نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے کہ کائنڈلی ایکسپلین مور ایڈوانٹیجز اینڈ انالیسز. اچھا یہ اسی کو. اور تیسری بات جو ہے کہ آپ میڈیا کانٹینٹ جو ہے، اب میں یہ تیسرا پوائنٹ اس کا کہہ رہا ہوں کہ آپ میڈیا کانٹینٹ جو ہے وہ آپ کا میڈیا افیکٹس کا پہلا پوائنٹ ہو سکتا ہے اسٹڈی کرنا. کیسے؟ کہ جب آپ میڈیا افیکٹس کو کانٹینٹ کو اسٹڈی کرتے ہیں، کانٹینٹ کو اسٹڈی کرنے کے بعد آپ اس کانٹینٹ کے افیکٹس دیکھتے ہیں لوگوں پہ. سو جو کانٹینٹ ہوتا ہے، اور میں اکثر اس پہ کہتا ہوں کہ دنیا میں کوئی ایسا کانٹینٹ نہیں ہے جو انوسینٹ ہو، یعنی جس کے اثرات نہ ہوں. ہر طرح کا جو کانٹینٹ ہوتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ فکشن ہو، چاہے وہ ہسٹری ہو، چاہے وہ ایکشن ہو، whatever، اس کے لوگوں پہ اثرات ہوتے ہیں. تو یہ جو کانٹینٹ انالیسز ہے دیٹ ایکٹس ایز اے لانچنگ پیڈ، اور اٹ ایکٹس ایز اے بگننگ پوائنٹ فار دا میڈیا افیکٹس. جب ہم کانٹینٹ اسٹڈی کرتے ہیں، ہمیں کسی خاص طرح کا کانٹینٹ، تو اس سے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں، یہ گیس لگا سکتے ہیں کہ اس کانٹینٹ کے لوگوں پہ اثرات کیا ہیں. تو جب لوگ فرض کریں زیادہ وائلنس دیکھتے ہیں تو ظاہر ہے لوگ زیادہ وائلنٹلی بیہیو کرتے ہیں معاشرے کے اندر. آپ اس کی بہترین ایگزامپل جو ہے ارطغرل ڈرامہ ہے. آپ دیکھیں جب لوگوں نے وہ ڈرامہ دیکھا تو بہت سے لوگوں نے گھوڑوں پہ سواری کرنا شروع کر دی، اسی طرح سے بیہیو کرنا شروع کر دیا. تو جو کانٹینٹ ہوتا ہے بنیادی طور پہ وہ شیپ کرتا ہے کہ کس طرح سے ہم جو ہے ہمارے اوپر اثرات کیسے ہوتے ہیں. مثلا ہم زیادہ تر یونیورسٹیز کے اندر یا زیادہ تر اسٹوڈنٹ اور ایون فیکلٹی سارے ہم جو ہے وہ یعنی فارمل جو ہماری ڈریسنگ ہوتی ہے وہ پینٹ شرٹس ہوتی ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ دیکھیں بنیادی طور پہ تو پاکستان کا جو نیشنل لباس ہے وہ شلوار قمیض ہے، لیکن جو کہ ہم جتنی موویز دیکھتے ہیں، جتنے ڈراماز دیکھتے ہیں، جتنے سیزنز دیکھتے ہیں، وہاں پہ بیشتر لوگوں کی جو ڈریسنگ ہوتی ہے وہ ویسٹرن ہوتی ہے. یعنی شرٹس پہنی ہوتی ہیں، ٹی شرٹس، جینس پہنی ہوتی ہیں، فارمل پینٹس پہنی ہوتی ہیں، ٹائی پہنی ہوتی ہے. تو آپ دیکھیں آپ کو یونیورسٹی کے اندر بہت کم لوگ ایسے نظر آئیں گے جن کی جو ڈریسنگ ہے وہ شلوار قمیض ہوتی ہے. زیادہ تر لوگوں کی جو ڈریسنگ ہے وہ وہی ہے جو وہ ڈراماز کے اندر دیکھتے ہیں، وہ جو سیزنز کے اندر دیکھتے ہیں، وہ جو موویز کے اندر دیکھتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کانٹینٹ انالیسز ہمیں مدد کرتا ہے یہ انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے کہ اس کانٹینٹ کے لوگوں پہ افیکٹس کیا ہیں. تو اگر آپ کو پتا ہو کہ کوئی بندہ کون سے ڈرامے دیکھتا ہے، کون سے سیزن دیکھتا ہے، اور آپ اس کا کانٹینٹ انالیسز کریں اور پھر اس میں سے سوال بنا کے لوگوں سے پوچھیں، تو آپ دیکھیں گے جس طرح کا وہ کانٹینٹ دیکھتا ہے یا ہم دیکھتے ہیں، ہم پہ اسی طرح کے اثرات جو ہیں
वो होते हैं। सो ये इसका तीसरा पॉइंट है, मेरे ख्याल में इट्स इनफ, काफ़ी है, आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि कंटेंट एनालिसिस जो है उसके यूजेस क्या हैं, उसके एडवांटेजेस क्या हैं, उसके फ़ायदे क्या हैं, वो किस लिए यूज़ होता है या वो क्यों यूज़ होता है। सो इफ़ देयर इज़ एनी पॉइंट I can talk on that, or I can elaborate that point. Otherwise, we go to the cross-sectional design. Is it right? Anybody? Anybody has a question, or should I go to the design part now? Anybody? Okay. So if there is any point, you can write in the comments box. आप comments box में लिखें, मैं उसका जवाब दे देता हूँ. Otherwise फिर हम जो है we move to the design part, or we start from the cross sectional design. Okay जी, cross sectional design. So Gulerina writes okay, so we go to the cross section. अब cross sectional design क्या है? बुनियादी तौर पे cross sectional design की philosophy ये है कि हम इस डिज़ाइन के अंदर लोगों से डेटा इन वन पॉइंट इन टाइम जो है एक वक्त में से हम लोगों से डेटा लेते हैं। मसलन आप फर्ज करें लोगों से पूछते हैं कि आप किसको वोट देंगे, ओके, यानी इलेक्शन आ रहे हैं ना, तो आप ये कहें कि 8 फरवरी को होने वाले इलेक्शंस में आप वोट किसको देंगे, आप 1000 लोगों से ये सवाल पूछते हैं। तो उसके बाद आप सवाल नहीं पूछते, इस डाटा का एनालिसिस करके आप ये बताते हैं कि मेजॉरिटी लोग किसको वोट देंगे, यानी 1000 में से कितने लोग किस पार्टी को वोट दे रहे हैं। इसको हम क्रॉस सेक्शनल डिज़ाइन कहते हैं। यानी बुनियादी तौर पे इसमें हम लोगों से एक ही बार डेटा लेते हैं, चाहे उनके एटीट्यूड्स के बारे में हो, चाहे उनके बिहेवियर के बारे में हो, चाहे उनके नॉलेज के बारे में हो, चाहे उनके बिलीफ के बारे में हो, चाहे उनकी ओपिनियन के बारे में। यानी जो मैंने शुरू में बात की थी कि सर्वेस के अंदर बुनियादी तौर पे हम 8-10 चीज़ें पूछते हैं, उनमें से कोई भी चीज़ हो, जब आप डाटा एक बार लें, एक बार लोगों से पूछें, तो इसको क्रॉस सेक्शनल डिज़ाइन कहते हैं। इसी तरह आप ये कंटेंट एनालिसिस भी क्रॉस सेक्शनल हो सकता है, यानी आप 1 साल का डाटा एनालिसिस करते हैं किसी अखबार का, तो ये क्रॉस सेक्शनल है। अगर आप 2 सालों का करते हैं और आप यूनिट ऑफ एनालिसिस 1 ईयर रखते हैं, तो ये अब लॉन्गिट्यूडनल बन गया, ये क्रॉस सेक्शनल नहीं रहा। अगर आपका मंथ फर्ज करें यूनिट ऑफ एनालिसिस है, तो फिर 1 महीना क्रॉस सेक्शनल है। अगर आप 2 महीनों का एनालिसिस करें, तो ये लॉन्गिट्यूडनल बन जाएगा। बुनियादी तौर पे आपका यूनिट ऑफ एनालिसिस आपको बताता है कि आपका डिज़ाइन कौन सा है, ठीक है। इन दिस केस क्रॉस सेक्शनल डिज़ाइन जो है, इसके अंदर हम डाटा एक बार कलेक्ट करते हैं और फिर बुनियादी तौर पे इसके अंदर जो है वो हम कोशिश करते हैं कि हम ये करें कि जब हमारे पास डाटा आ जाता है, हम कलेक्ट कर लेते हैं, तो उसका एनालिसिस करके हम इसमें पैटर्न्स देखते हैं, एसोसिएशंस देखते हैं कि जैसे मैंने कंटेंट एनालिसिस में बताया था कि कौन से पैटर्न्स हैं, क्या मेल की और वोटिंग प्रेफरेंस की एसोसिएशन है, मेल ज़्यादा किस पार्टी को वोट देंगे, फीमेल्स की और वोटिंग प्रेफरेंस की कोई एसोसिएशन है, या एज की और वोटिंग की कोई एसोसिएशन है, और इसी तरह या आप ये कह लें कि जो है रूरल अर्बन जो है, यानी लोगों की जो अर्बन और रूरल है, उसकी प्रेफरेंस का कोई वोटिंग प्रेफरेंस के साथ या कोई ताल्लुक है, तो ये हम एसोसिएशंस मालूम करते हैं। तो बुनियादी तौर पे जो हमारा क्रॉस सेक्शनल डिज़ाइन होता है, उसके अंदर डाटा एक बार कलेक्ट होता है और उस डाटा का एनालिसिस करके हम एसोसिएशन फाइंड करने की कोशिश करते हैं, और एसोसिएशंस के नतीजे में हम जो है वो देखते हैं कि क्या हो रहा है या क्या होता है। दूसरा जो डिज़ाइन है उसे हम लॉन्गिट्यूडनल डिज़ाइन कहते हैं। लॉन्गिट्यूडनल डिज़ाइन, जैसा कि लफ्ज़ से इसका इज़हार हो रहा है, लॉन्गिट्यूडनल डिज़ाइन के अंदर हम डेटा कम अज़ कम 2 मरतबा या 2 से ज़्यादा मरतबा कलेक्ट करते हैं। मैं यही एग्जाम्पल जो है इसको रिपीट करना चाहूँगा। अगर आप फर्ज करें 1000 लोगों से कल पूछें या 500 लोगों से कल पूछें कि 2024 में 8 फरवरी को होने वाले जो इलेक्शंस हैं, इनमें आप वोट किसको देंगे, ठीक है, कल पूछें 500 लोगों से, और फिर जो है 2 दिन बाद 500 लोगों से फिर यही सवाल पूछें, और फिर 2 दिन बाद 500 लोगों से यही सवाल पूछें, तो 3 बार आपने सेम सवाल जो है वो लोगों से पूछा। तो ये डिज़ाइन बुनियादी तौर पे लॉन्गिट्यूडनल डिज़ाइन है कि आपने मोर देन 1 पॉइंट इन टाइम जो है लोगों से डाटा कलेक्ट किया है। लॉन्गिट्यूडनल डिज़ाइन जो है बुनियादी तौर पे 2 तरह के होते हैं, एक को हम प्रोस्पेक्टिव कहते हैं और एक को हम रेट्रोस्पेक्टिव कहते हैं। प्रोस्पेक्टिव का मतलब जो मैंने अभी मिसाल दी है, ये प्रोस्पेक्टिव टाइप है कि आप कल पूछें, फिर 2 दिन बाद पूछें, फिर 2 दिन बाद पूछें, ये प्रोस्पेक्टिव
लॉन्गिट्यूडनल डिजाइन है। रेट्रोस्पेक्टिव क्या है कि आप कल 200 लोगों से पूछें कि इस वक्त पाकिस्तान में कल्चरल पैटर्न्स कौन कौन से हैं, या आप ये पूछें कि इस वक्त पाकिस्तान का पॉलिटिकल कल्चर कैसा है, और फिर कल ही यानी ये सवाल पूछने के बाद अगला सवाल ये पूछें कि आज से 5 साल पहले पाकिस्तान के जो कल्चरल पैटर्न थे वो कैसे थे, या आज से 5 साल पहले पाकिस्तान का पॉलिटिकल कल्चर कैसा था। ये रेट्रोस्पेक्टिव लॉन्गिट्यूडनल डिजाइन है, यानी जिसमें आप आज पूछते हैं और फिर ट्रैक बैक करते हैं, रिकॉल करते हैं, लोगों को रिकॉलिंग करवाते हैं। और प्रोस्पेक्टिव जो होता है उसमें आप आज सवाल पूछते हैं और फिर आने वाले मुस्तकबिल के बारे में पूछते हैं। अब ये दोनों यानी रेट्रोस्पेक्टिव एंड प्रोस्पेक्टिव जो डिजाइन होते हैं इनमें स्टडीज 3 तरह से होती हैं। अच्छा, गुलरीना कह रही रिपीट कर दें। रिपीट ये कि प्रोस्पेक्टिव मतलब ये कि आप कल लोगों से पूछें कि आप 8 फरवरी को होने वाले इलेक्शन में किसको वोट देंगे। कल मतलब जुमा है, अतवार को फिर यही सवाल पूछें और मंगल को फिर यही सवाल पूछें, तो ये प्रोस्पेक्टिव डिजाइन है, ठीक है। रेट्रोस्पेक्टिव जो है वो ये है कि आप कल लोगों से पूछें, 200-300 लोगों से पूछें कि पाकिस्तान का इस वक्त कल्चर कैसा है, या पाकिस्तान में पॉलिटिकल कल्चर कैसा है, और फिर ये सवाल पूछने के फौरन बाद ही ये सवाल पूछें कि आज से 5 साल या 10 साल पहले पाकिस्तान का पॉलिटिकल कल्चर कैसा था। तो चूंकि आपने रिकॉलिंग करवाई है, आपने जो टाइम इंटरवल पैदा किया वो रिकॉलिंग से करवाया है, ठीक है, आप वापस गए हैं। तो ये रिकॉलिंग का मतलब ये है कि आपका जो डिजाइन है वो रेट्रोस्पेक्टिव है, प्रोस्पेक्टिव नहीं है। सो रेट्रोस्पेक्टिव इज अबाउट द पास्ट, सो दिस इज अ रेट्रोस्पेक्शन। सो रेट्रोस्पेक्शन का मतलब ये है कि यू गो टू दी past, you ask something about the past, you ask something today and then you ask about the past. So does the group of responder remain same over time in the longitudinal research design? This is an important question and this is what I'm going to talk now. अब ये जो दोनों काइंड्स हैं डिजाइन की, लॉन्गिट्यूडनल की, चाहे रेट्रोस्पेक्टिव हो और चाहे प्रोस्पेक्टिव हो, इसके अंदर स्टडीज 3 तरह की होती हैं, जो मैमूना कामरा ने सवाल भी पूछा है। एक ट्रेंड स्टडीज होती है, एक कोहोर्ट स्टडीज होती है, एक पैनल स्टडीज होती है। सबसे पहले पैनल स्टडीज की बात करते हैं, जो मैमूना का सवाल भी है। अब पैनल स्टडीज का मतलब है कि अगर आपने 100 लोगों से कल पूछे कि आप 8 फरवरी को होने वाले इलेक्शंस में किसको वोट देंगे, ठीक हो गया। उसके बाद इन्हीं 100 लोगों से आप मंगल को भी सेम सवाल पूछें, फिर इन्हीं 100 लोगों से आप बुध को भी सेम सवाल पूछें। इसका क्या मतलब हुआ? सवाल सेम रहा, लोग भी सेम रहे, सैंपल भी सेम रहा और मेथड भी सेम रहा। तो ऐसे तरीके में जिसमें सवाल भी सेम रहे, मेथड भी सेम रहे, सैंपल भी सेम रहे, उसे हम पैनल स्टडीज कहते हैं, ठीक है। और मेरे ख्याल में अब मेरी वॉइस जो है वो क्लियर आ रही है, और अगर किसी को नहीं आ रही तो मेरे ख्याल में शायद इंटरनेट का इशू होगा। तो ऐसी स्टडीज जिनके अंदर सवाल भी सेम रहे, सैंपल भी सेम रहे और मेथड भी सेम रहे, उन्हें पैनल स्टडीज कहते हैं। दूसरी कोहोर्ट स्टडीज होती है। अब कोहोर्ट स्टडीज और पैनल स्टडीज आइडेंटिकल होती हैं। कोहोर्ट का मतलब है एज कोहोर्ट, एजुकेशन कोहोर्ट, यानी जो एक ही साल सारे ग्रेजुएट हों, जो एक ही साल सारे मैरी हों, खुदा ना खासा एक ही साल सारे डिवोर्स हों, और एक ही साल किसी को जॉब मिली हो, एक ही साल सारे पैदा हुए हों। इसका मतलब ये हुआ कि कोहोर्ट में भी सवाल भी सेम रहता है, लोग भी सेम रहते हैं, मेथड भी सेम रहता है, ओके। अब जो ट्रेंड स्टडीज हैं, ट्रेंड स्टडीज के अंदर सवाल सेम रहता है, लोग डिफरेंट होते हैं, सैंपल हर बार डिफरेंट होता है दूसरे लफ्जों में, और पॉपुलेशन सेम रहती है। आप गुजरात से 100 लोगों से कल पूछे 8 फरवरी को किसको वोट देंगे, आपने शादमान से पूछा, सेम सवाल आप मॉडल रोड से भी पूछ लें, और सेम सवाल जो है आप रेलवे रोड भी जाके पूछ लें। मतलब क्या, सवाल सेम रहा, पॉपुलेशन भी सेम रही गुजरात, हर बार सैंपल आपने डिफरेंट लिया। ऐसी स्टडीज को ट्रेंड स्टडीज कहते हैं। सो लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज के अंदर, लॉन्गिट्यूडनल डिजाइन के अंदर स्टडीज 3 तरह की होती हैं बुनियादी तौर पे, ट्रेंड स्टडीज, कोहोर्ट स्टडीज एंड पैनल स्टडीज। ये तीनों स्टडीज रेट्रोस्पेक्टिवली भी की जा सकती हैं, ये तीनों स्टडीज प्रोस्पेक्टिवली भी की जा सकती है, यानी प्रोस्पेक्टिव डिजाइन के अंदर भी की जा सकती है, रेट्रोस्पेक्टिव डिजाइन के अंदर भी की जा सकती है। मेरे ख्याल में इस डिस्कशन के साथ आपका जो लॉन्गिट्यूडनल डिजाइन है वो क्लियर होना चाहिए। अगर कोई सवाल है किसी के पास तो वो लिख सकता है, मैं उसका जवाब दे देता हूँ।
You can, if there is any question, you can write. Otherwise, I go to we finish. I think experimental design has already lecture on that. So I think you can go back and watch those two. I mean, two or three lectures like Solomon and Factorial, and I think classical design. I think these are the three kinds of experimental design. Then there's a cross-sectional design, and then I think there are something like five lectures on longitudinal design, one lecture on cross-sectional, three lectures on experimental design. So three, five, six, seven, eight, nine. These are the nine lectures. And then, of course, I summarize survey and content analysis, and also I talked something about the designs as well. So retrospective and prospect because okay. So excuse me. So retrospective is about the past now, Gulerina. When you know when we say आप बहुत retrospective है, it means you think, I mean, more about the past. So हम एक सवाल आज पूछें कि आजकल पाकिस्तान का पॉलिटिकल कल्चर कैसा है, या इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी हैं, या कल्चरल ट्रेंड्स पाकिस्तान में कौन से कॉमन है, और फिर उसी बंदे से, यानी आज ही, अभी मैंने ये सवाल पूछा और उसी बंदे से फिर मैंने ये सवाल पूछा कि आज से 5 साल पहले या 2 साल पहले या 10 साल पहले पाकिस्तान का पॉलिटिकल कल्चर कैसा था, इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी थी, ये कल्चरल पैटर्न्स, ये तीन मैंने कैटेगरीज बताई। आप कुछ भी पूछ लें, इसको हम रेट्रोस्पेक्टिव डिजाइन कहते हैं कि हमने पास्ट के बारे में उस बंदे से रिकॉलिंग करवाई है, यानी हमने जो टाइम इंटरवल क्रिएट किया वो पास्ट की तरफ वापस गया, रिकॉलिंग करवाई है। जबकि प्रोस्पेक्टिव में जो हम टाइम इंटरवल पैदा करते हैं एक से ज्यादा, वो हम फ्यूचर की तरफ जाते हैं। आज आप लोगों से पूछें कि 8 फरवरी को किसको वोट देंगे, और फिर संडे को पूछ लें, और फिर वेडनेसडे को पूछ लें, तो इसका मतलब है, देखें जो टाइम इंटरवल मैंने 3 पैदा किए हैं, पॉइंट ऑफ टाइम, वो मैंने फ्यूचर की तरफ पैदा किया। दैट्स व्हाई वी कॉल दिस काइंड ऑफ डिजाइन एज अ प्रोस्पेक्टिव लॉन्गिट्यूडिनल डिजाइन। जबकि जो मैंने पिछली एग्जांपल दी है उसमें हमने जो रिकॉलिंग करवाई है वो माजी की तरफ करवाई है। वी कॉल्ड दी, आई मीन, दोस काइंड ऑफ डिजाइंस एज retrospective longitudinal designs. Is it clear, Gulerina? कुछ क्लैरिटी हुई इसके साथ? मेरे ख्याल में मैंने इसको क्लियर कर दिया, and you and your other friends can understand how many. This is not a Zara Zai. This is not a good question. You need to ask this question in the group. So आप लोगों को please, you need to be decent here. So what kind of question you are asking? So, okay, good, Arena got it. Thank you so much. So, thank you so much, guys, for joining. If there is any other question, I can answer that. Otherwise, we conclude this session with this point that I hope that you got understanding. And if there were some ambiguities, or there was some things which were not clear to you, I think. Now you are clear and you have more clarity about those things. So I'm really happy that some of you guys are now more hungry about knowledge. They are more committed, and they are getting more committed with their, I mean, quality education. They want to know the things now. They want to bring clarity and understanding about I mean, different aspects of research. And that's really very encouraging. I like this and I appreciate this. So and I want to see this kind of commitment, this kind of urge, and this kind of hunger more in future as well, so that I mean, if not all of you, then some of you and most of you need to be more clear, more focused, more refined versions of yourself. And the best way to do that is that that you understand the things, you have clarity about the things which you study. And the best thing is to hear the people or watch the people who have clarity, or read what is the most important thing. So if you can't read them, the best thing is that listen or watch. So thank you so much. And Gulerina, about Solomon 4 group or factorial design, I think you can watch the lectures. They are available. So I think then if we go there, these things will keep going
going and going. I think you can watch those two talks, those two lectures about factorial design and Solomon four group design and classic experimental design. I think you would have clarity. And even if you have any question after that, then you are welcome to ask anytime. So, guys, thank you so much. With this, we conclude this session. So, stay blessed, best of luck, and stay tuned. Thank you so much. Let's conclude this session. Bye bye. So the खेती तो बाइक चल बच्चे ने अनवाएंगे था जितना कर रहे हैं उन्होंने समझ आ गई रिकॉर्डिंग से हम लोग